be sensitive to the environment. We must consider our water bodies as our heritage. our અતિથિ ભાવ અને આપણા સંસ્કાર એ પણ આપણો વારસો છે. જ્યારે આપણે એમ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે સર લાખાજી રાજ બાપુ મારા પરદાદાનું જ્યારે દેહાંત થયું અને પૂજ્ય ગાંધીજીએ ધર્મેન્દ્રસિંહજી બાપુને જ્યારે એક પત્ર લખ્યો, એ પત્ર પણ આજે, દેટ કંડોલન્સ લેટર ઓલ્સો આઈ હેડ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી ઓફ શો ઇટ ટુ યુ, જેમાં ગાંધીજીએ એ ઉલ્લેખ કર્યો ધર્મેન્દ્રસિંહજી બાપુને કે આજે પ્રાતસ્મરણીય લાખાજીરાજ બાપુ નથી રહ્યા. માનવીનો દેહ જાય છે, પરંતુ તેના સદકર્મનો ક્યારેય શ્રેય નથી થતો. આપના બધા સદકાર્યો અને સદકર્મો જે આજે આપ કરી રહ્યા છો, કે જે આવતી જનરેશન માટે પણ એક પ્રેરણા સ્વરૂપ છે, એ આપ હંમેશા કરતા રહો અને હંમેશા આપ સુખી થાઓ અને બધાને સુખી કરો. અને એ આપણું જે હ્યુમન હેરિટેજ છે, કે જે આપણા માત્ર આપણી ઇમારતો એ આપણો વારસો નથી. આપણા વોટર બોડીઝ અને જે આપણા જળ સંશયો છે, એ જ માત્ર આપણો વારસો નથી. આપણા અતિથિ ભાવ, પરંપરા અને સંસ્કારો છે, એ જ આપણો વારસો નથી. પરંતુ આપણે રોજ બરોજ આપણે જીવનની અંદર દરેક ક્ષણે આપણે સત્યથી, આપણે કોઈને પણ દુઃખ લગાડ્યા વગર આપણે પ્રેમથી આપણું જીવન વ્યતીત કરીને આપણા સદકાર્યો કરી શકીએ, એ વારસાના આપ અધિકારી છો. અને એ હેરિટેજ, that heritage is to be restored and is the prime responsibility of the youth to restore this heritage, which is intrinsically, it has more connotations than what the word describes. Fantastic. Thank you so much for that message. And one thing that I was thinking of in terms of the heritage, when you were talking about our bodies of water being our heritage, and I was thinking about our spiritual heritage, that we have to take care of ourselves. We have to nurture ourselves, be kind to ourselves, have mercy on ourselves, feed ourselves spiritual food so that we become and remain strong inside, so that our decisions, our actions are aligned with those key, core, beautiful elements of our original nature. This would be another heritage that we should look after. So thank you so much for that. Now finally, Natalie, I would like to call upon you as a representative of the rest of the world. What is your message for India's future as leader with soft power? In short words, we don't have so much time. Okay. I feel the environment that we live in on a day-to-day basis, I say we, living in Mumbai, living here, it's a difficult environment to live in. And, I feel we need a lot of strength inside to be able to stay loving and peaceful towards each other in this world. And so my wish for the future is that people take a moment to be calm and peaceful and have that respect for each other as we go about our daily lives. Or, I think that applies here, it applies everywhere. Yeah. That we need to give that respect to each other. And of course, respect for others comes first from respect of the self. Yes, we need to be very strong inside. Absolutely. So, ladies and gentlemen, I hope through our little conversation here you've been able to get some insights as the kind of things that we were discussing yesterday morning and early afternoon. So I'd like to thank all of you, Dr. Bhavna, Miss Natalie and Yuvrajji Mandata-Sin, all so much for the courage and fortitude of coming up here onto the stage. And I'd like to invite you to go back to your seats and give them a big round of applause, please. Thank you so much. Thanks. Thanks so much. Thanks. Jolly good. Yeah, great. Thanks.
So now, ladies and gentlemen, time is creeping on, and at the moment we're bang on time, it's no problem. But what I'd like to ask you to do now is to sit back, relax, because Dadi Janki, who is the administrative head of the Brahma Kumaris worldwide, unfortunately is not able to come with us today, but she has specially sent her message. And so now, please enjoy Dadi Janki. स्नेह है, कभी भी मैंने पहले मिस नहीं किया। जहाँ जहाँ प्रोग्राम है, मीठे भाई के स्नेह में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखो हम फ्यूचर ऑफ पावर में पहुंच गई। हमारे निज़ार भाई का रूहानी स्नेह है, कभी भी मैंने पहले मिस नहीं किया। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ है, मीठे भाई के स्नेह में, मोरनी के भी स्नेह में हाजिर हो जाती। लेकिन ये भी ड्रामा अनुसार साधनों के द्वारा मिलना होता है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो अब फ्यूचर ऑफ पावर मैं हंसी में बताती हूँ। आप कहते हो फ्यूचर ऑफ पावर, मैं कहती हूँ पावर ऑफ फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर के लिए हमारे अंदर कितनी अभी पावर परमात्मा बाप के द्वारा ऐसी खींच रहे हैं जिसे फ्यूचर बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। क्योंकि एक 3 बातों की पहचान मिली है। अभी आप लोग पता होगा, हमारी प्लेटिनम जुबली मना रही है 75 साल की। तो मैं थोड़ा अंदाज़ा लगाती हूँ 75 साल में क्या क्या परमात्मा द्वारा इस आत्मा ने पाया है। जो हम आत्मा ने पाया है, फिर औरों को ऑटोमेटिक जो मिल रहा है वो देने के लिए भाग्य विधाता परमात्मा भाग मिला है, जिससे टाइम अनुसार 5 बातों की पहचान दी है। एक स्वयं, मैं कौन हूँ, समय, बाप, हर आत्माओं से संबंध और सेवा। समझ गए मेरी बात को? 5 बातें। स्वयं को पहले पहचानो, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। समय को पहचानो, ये समय है। वैल्यूज़ को जानना, अपने जीवन में वैल्यूज़ को लाना। जानना, कई वैल्यूज़ को जानते हैं, समझते भी हैं, इंसान में ये वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं। अभी यहाँ इस वायुमंडल में आपको संगठन में वैल्यूज़ क्या है, उसमें हम 8 शक्तियाँ 12 वैल्यूज़ है। तो वैल्यूज़ की लिस्ट आपको बहन बताएंगी। वहाँ 12 वैल्यू कौन सी है जो जीवन में हमारे गुण, वैल्यूज़, वर्चूज़, कुछ जब लाइफ में है तो वैल्यू हो जाती है लाइफ की। पर देखा जाता है सारे जो हमारे कोई अवगुण है उसको निकालने की शक्ति चाहिए। उसकी शक्तियाँ धीरज है, सहन शक्ति है, समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, संयोग देने की शक्ति है। तो कुदरती शक्तियाँ से वैल्यूज़ मिलकर के जीवन को अच्छा, औरों को भी प्रैक्टिकली
प्रूफ दिखाने के लिए लाइफ बन जाती है। अभी आजकल हमारे बुद्धि में ये है, तो जीवन की घड़ियाँ बहुत अमूल्य है। हम सारा दिन रात एक अंगुली से उसको ऊपर वाले को सदा सामने रखती हूँ, दूसरों टाइम को सामने रखती हूँ। टाइम कहता है मुझे सफल कर, वो कहता है मैं सिखाता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। वो कराने वाला है, समय कर रहा है, मैं उसका फ़ायदा दे करके जी चाहता है। हर आत्मा अपने आप को देख पहचान, परमात्मा से जो मिलता है वो जी भर के ले लेवे। परमात्मा क्या देता है? प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। समझा? समझा ना? कौन देता है ये? कोई इंसान दे सकता? प्यूरिटी हो तो पीस आएंगी, पीस होगी तो लव होगा, लव होगा तो हैप्पीनेस आएंगी, हैप्पीनेस में पावर होंगी। ये इतनी 5 चीज़ें परमात्मा से ऐसे हमको मिले, बच्चा समझ के ले लो या अपने इतना लायक बना के खींच लो भगवान से। ये समय है, मैंने देखा है फ्यूचर ऑफ पावर में हर जगह जो प्रोग्राम हुआ है, सभी आत्माएं जो संगठन रूप में इकट्ठी होते हैं, जो आपस में लेन देन होती है, खुली दिल से बातें करते हैं, शाम का भी जो प्रोग्राम होता है, अनेक आत्माओं को इतने थोड़े घंटों के अंदर, थोड़े टाइम के अंदर जैसे कान खुल जाते हैं। जैसे सिंपल बातें हैं, बात बड़ी नहीं है, पर सिंपल बात को भी समझा न होने के कारण दुनिया में जो कुछ है, मैं क्या बोलूं, हर एक जानता है दुनिया में क्या है। उनसे दुनिया के उस बातों से एकदम न्यारा हो जाना, अपन को छुड़ा देना, पर अलग हो, छुड़ा करके कहीं जंगल में नहीं जाना है, परंतु अपन को गलत कामों से छुड़ाना है। जो एक्टिविटी जिसमें सत्यता और अहिंसा की कमी है, वो काम नहीं करने का है। महात्मा गांधी की इच्छा थी सत्यता और अहिंसा से। इतना महात्मा गांधी ने कितना, मैंने महात्मा गांधी के साथ प्ले किया है। बचपन में महात्मा गांधी के प्रार्थना सुनने के लिए सिंध में हैदराबाद से कराची जाती थी, परंतु फिर भी भारत क्या हो गया? अभी ठीक है जो हुआ, परमात्मा बाप अभी हमारे भारत तो क्या सारे विश्व को अच्छा, सच्चा, सच्चाई और अहिंसा से श्रेष्ठाचारी बना रहा है। तो आप सभी यहाँ आए हो, संगठन में आए हो, अच्छी तरह से हर एक को समाज सेवा का बहुत अंदर से है। तो जो हमको ऐसी चीज़ कुछ संसार में करने को मिले, जो संसार में जो मनुष्य आत्माएं दुखी, अशांत, चिंता में, अपने कईयों को देखो डिप्रेशन की बीमारी लगी हुई है। अभी इसलिए भगवान कहता है तुम मेरे को चिंतन में रखो, मेरे लिए मेरी बातों को मन में समाओ और जीवन में लाओ, तो आपकी जीवन से अनेक आत्माओं को जीवन अच्छी जीने की कला मिल जाएंगी। और सदाएं अपने आप को एक, मैं 3 बारी ओम शांति इसलिए कहती हूँ। पहला ओम शांति, आत्मा का स्वधर्म है शांत, ठीक है, स्वधर्म है शांत। फिर दूसरा, परमात्मा मेरा पिता है ना, सर्वशक्तिवान, वो मेरा बाप, शक्ति आ जाती है। फिर संसार में रहते हुए न्यारा बनने की परमात्मा ऐसी शक्ति देता है जो सदाई हर्षित रह सकते हैं। कब मुरझाने की बात नहीं, मूंझने की बात नहीं, सदा हर्षित रह करके औरों को भी खुशी, अंदर से भगवान से पाई हुई खुशी, शक्ति, शांति औरों को भी अपना अनुभव कराते चले, ये मेरी भावना है। ओके, ओम शांति। Ladies and gentlemen, my brothers and sisters, surely the
basis upon all that we have been talking about today is the fundamental remembrance and understanding of the self and the ability to make that connection with the divine. And so now it's my great pleasure to invite Sister Anju, who is the Subzone Director also of Rajkot region, to lead us in meditation. राजयोगा मेडिटेशन से अपने जीवन में बहुत ही अच्छी शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। मेडिटेशन अर्थात टू वे कम्युनिकेशन, मैं कौन मेरा कौन, हम सबके सामने जो दिखाई पड़ रहा है वही वास्तव में हम सबका असली पिता है। जब एक बच्चे को अपने पिता की पहचान मिलती है, पिता की प्रॉपर्टी का हक मिल जाता, हम भी समझ सकते हैं राजयोग से अंतर जगत की पहचान के साथ साथ उस परम शक्ति का परिचय मिलता है। स्वयं के अंदर जो भी शक्तियां हैं, जो भी पावर है, उस पावर को विश्व कल्याण के लिए यूज करना, स्वयं को देखते रहना, स्वयं के साथ बातें करना और अपने पिता के साथ हम अच्छी तरह से संबंध रखें, वही मेडिटेशन का सच्चा अर्थ हम समझ सकते हैं। तो आइए हम सभी कुछ क्षणों के लिए स्वयं को देखें। इस देह से डिटैच होकर मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ चैतन्य सितारा अनुभव करेंगे और साथ ही साथ इस देह से थोड़ी क्षणों के लिए न्यारे हो जाएंगे उस परम शक्ति से, पीस, प्यूरिटी, हैप्पीनेस अपने अंदर समाने का आनंद लेंगे। उस परम स्रोत से आज मुझ आत्मा की बातचीत हो रही है। इतने बड़े संगठन में मेरे आसपास और कोई नहीं है, सिर्फ मैं और मेरा असली पिता है, असली पिता है।